Good afternoon, everyone. I am Smriti Sharma. I am the Center Head for Startup Accelerator Chamber of Commerce, Gurugram. आज का session on the art of pitching is a very important and dear session. There are a lot of startups who want to come and who ask us कि pitching कैसे होती है. And just interacting with you, I gained a lot of idea कि आप लोगों के माइंड में पिचिंग कैसे चलती है, इसका क्यों करते हैं हम पिचिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंटली. एंड टू टेक दिस सेशन फॉरवर्ड, हम सबके फेवरेट विनीत सर इज हियर. I don't think he needs any introduction. Every member of SAC and students is well versed of him. My own students keep reaching out to him, keep messaging him all the time, and he very patiently answers everyone's questions. So Vineet sir, thank you very much for always guiding the students and us. I would request you to kindly take this session forward. Thank you so very much, Smriti. Thanks a lot for your kind words. I'd say because you and other members of our team are deeply rooted with the entire community of SACC, hence we are able to bring some impact. And the kind of impact you guys are creating at the grassroots level, I think it's very encouraging. It's very motivating for all of us, especially for me, because I think the kids that we are working with, the student community that we are working with, they all look up to us. So with that note, let me start the interaction. And I so loved the responses that I received, that I saw people responding to your questions, and I so loved those messages. तो आई थिंक इसी मोमेंटम को हम बरकरार रखेंगे एंड इसी मोमेंटम पे ही हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि आज के सेशन में आप जितनी इंटरेक्शन रखोगे, जितने आप इंटरेक्टिव होंगे, जितने आप क्वेश्चंस पूछेंगे, मुझे लगता है उतना ही बेनिफिट आपका होने वाला है. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? इफ यस, देन प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स यस. इफ यू कैन सी द स्क्रीन that says the art of pitching, so please likhiye yes. Okay, lovely. I'm seeing so many responses dropping in. Great, good to see. Okay, lovely. So welcome again everybody. अब हम आइडिया कृति की बात करें तो आई थिंक इतना अमेजिंग प्रोग्राम था सबकी लर्निंग के लिए, और उसके आखिरी पड़ाव पे हैं हम. मतलब कुछ ही सेशंस बाकी हैं. आज का सेशन है, इसके बाद शायद 1 या 2 सेशंस है आइडिया कृति के बचे. तो आप लोगों की क्या फीडबैक है आइडिया कृति को लेके अब तक? आप में से कुछ लोग होंगे ऑफ कोर्स जिन्होंने सारे सेशन अटेंड किए होंगे, या कुछ सेशंस आपने अटेंड किए होंगे. तो आपकी क्या फीडबैक है? आपने जो सेशन अटेंड किए हैं उनमें से आपका फेवरेट सेशन कौन सा रहा है अब तक? प्लीज टाइप इन दी चैट बॉक्स. और आपको क्या सीखने को मिला? इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं, या दोनों का आंसर करना चाहें तो दोनों का आंसर कर सकते हैं. तो आपका फेवरेट सेशन अब तक कौन सा था, और आपने क्या सीखा आइडिया कृति प्रोग्राम से अब तक? क्विक आंसर्स. बिजनेस मॉडल. कविता सेज बिजनेस मॉडल. करण सेज फेसबुक एड्स. लवली. Anybody else? It's not important कि आपने सारे सेशंस अटेंड किए हो, बट जितने भी आपने किए हो उनमें से आपको क्या सीखने को मिला? एलिवेटर पिच. मोहित सेज. पूजा सेज okay, that's too many comments dropping in. Hemant says legal aspects. Mohit says elevator pitch. Sahil says marketing. Avnish says why and how to sell on Amazon. Avnish, thank you for being such a wonderful team member. Himanshu says Facebook ads. Sneha says very interesting and giving much knowledge and inspiring. Krishnan says parts of presentation. Priyanka says Amazon and elevator pitch. Fiza says Amazon Karigar. Okay, lovely. So without further ado, I'd say let's move on. अभी तक आप लोगों ने शार्क टैंक के बारे में अपने इनपुट्स दिए. Some of you learned a lot, and I think I accidentally stopped sharing my screen. तो मैं दोबारा शेयर कर लेता हूँ.
Can you see it again? Can anybody confirm? Okay, perfect. Yeah. So, so what does this remind you? This overall Shark Tank program that you saw, that you witnessed, आपको ये किस चीज की याद आती है जब आप शार्क टैंक की पिक्चर को देखते हैं? Whatever your experience of learning has been, एक लाइन में Mohit says roadies. Mohit, actually I agree. Hemant, drama, roadies, of course there was a lot scripted. Some of you might say that. Essentially I'm not saying कि scripted था या नहीं था, but yes, there are people who believe that it was scripted. Vishesh says money. India has entrepreneurial decade coming in 2020 to 2030. Anshuman, I totally believe in it. What he just said, I totally am with you. So बहुत I am out. Lovely. Fiza says I am out. It's not my expertise, so I am out. Hemant says. So आप लोगों ने कुछ एक dialogues को रटी लिए जो बहुत ही popular dialogues थे. Many creative ideas. Priyanka says, more sharks are better than one. Avnish says, lovely. So आप लोगों की कुछ ना कुछ learnings. I mean, you can choose to hate or like Shark Tank, but एक चीज तो है यार, हम लोगों के घरों में dinner table conversations का part हो गया startups और startup funding, right? तो equity, debt, startup funding, sharks, angel investing. ये सारी टर्मिनोलॉजी जो पहले शायद एक ग्रुप तक ही रिस्ट्रिक्टेड थी, काफी कम लोग उसके बारे में बात करते थे. आई गेस दिस इज नाउ अ पार्ट ऑफ आवर डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस. वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है. तो जो ये 2020 से 2030 की हम डेकेड की बात कर रहे हैं, दैट बिलोंग्स टू इंडियन स्टार्टअप्स. समहाउ वी हैव मूव्ड अ स्टेप क्लोजर. आप जितना मर्जी ड्रामा इसको बोलिए या जो जितना मर्जी आप इसको स्क्रिप्टेड बोलिए, एटलीस्ट आई थिंक वी हैव मूव्ड अ स्टेप क्लोजर टू इट. Do you all agree with me? Yes or no? Perfect. Thank you so much for responding. So now moving on, इस सबसे हमें ये देखने को मिला कि स्टार्टअप्स फंडिंग रेज करती है, राइट? तो स्टार्टअप्स अगर फंडिंग रेज करती हैं तो वो किस लिए रेज करती हैं फंडिंग? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज. ओके, सो कुछ एक पॉपुलर बिलीफ्स आप कह लो, वो ये बोलेंगे, कुछ एंटरप्रेन्योर्स अगर आप पूछोगे तो वो बोलेंगे ग्रोथ, वैलिडेशन, टैलेंट हायरिंग, बीटिंग कॉम्पिटिटर्स, ब्ला 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 ब्ला. दे कैन बी मेनी सच रीजंस जो लोग आपको देंगे स्टार्टअप फंडिंग रेज करने के लिए. स्टार्टअप को फंडिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? इफ यू गो डीप इनटू इट, एंड आई थिंक ओरिजिनली स्मृति हैड आल्सो आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो उस पे कई लोगों ने रिप्लाई भी किया था, एंड आई एग्री विद ईच वन ऑफ यू. अब टिपिकल मोड्स क्या है स्टार्टअप फंडिंग के? द फर्स्ट वन एंड द मोस्ट पॉपुलर वन इज बूटस्ट्रैपिंग. द सेकंड वन इज FFF. I'll go into details shortly. And the third one is angel investors and VCs. Okay. Now, what is bootstrapping? Bootstrapping here, using your own savings to initially build the product and testing the market. That means bootstrapping वो मोड है जिसमें आप अपने खुद के कैपिटल को रिस्क करते हो, आप अपने खुद के पैसे को अपनी सेविंग से निकालते हो और उसको इन्वेस्ट करते हो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने. नाउ आई टोटली गेट इट कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ यू आर स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ. तो खुद की सेविंग्स तो कितनी होगी यार? मतलब फैमिली क्या देती है? पॉकेट मनी देती है यूजुअली, और वो दैट्स नॉट इवन एनफ टू कवर आवर ओन एक्सपेंसेस, आवर ओन नीड्स. लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जो एलुमनाई भी हैं, जो ऑलरेडी ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, एंड हु आर बिल्डिंग देयर स्टार्टअप्स. तो कुछ सेविंग्स
किसी ना किसी एंटरप्रेन्योर की अपनी होंगी जो उन्होंने इनिशियल फंडिंग अपने बिजनेस में लगाई होगी, अपने खुद के सेविंग से, अपने खुद का बैंक तोड़ के. दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग. एम आई क्लियर हियर? Now moving on, the second form of funding is FFF, which is friends, family and fools. तो फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूल्स, एंड कलेक्टिवली मैं इनको एक्चुअली फूल्स ही कहता हूं. क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो रैशनल नहीं ढूंढते आपकी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए, आपको पैसा देने के लिए, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए. ये लोग वो लोग नहीं है जो आपको क्वेश्चन करें या आपके डिसीजंस को कंट्रोल करेंगे यूजुअली. ओके, लेट्स नॉट कंपेयर दिस with how accommodating your family is with the idea of you doing the business. अभी हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि आपकी फैमिली कितनी accommodating है या कितनी supportive है इस चीज को लेके कि आपने बिजनेस करने का डिसाइड किया. But there are friends, there are family members, and there are some fools who come with us. Collectively, these fools do not ask us much questions and give us some money. कि यार थोड़े बहुत पैसे तुम्हें दिए, तुम इससे अपने बिजनेस को स्टार्ट करो, चलो तुम्हारा ड्रीम है, उसके लिए तुम्हें हम पैसे देते हैं, बट वी डोंट वांट टू कंट्रोल योर डिसीजंस. वी डोंट वांट एनी इक्विटी, वी डोंट वांट एनी कंट्रोल इन योर बिजनेस. यूजुअली एफएफएफ वो कैटेगरी है जो आपको तंग नहीं करेगी, राइट? एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज, व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर वन, स्पेशली आज के टाइम में जब आपने शार्क टैंक देख लिया और आप लोगों को थोड़ा समझ आने लगा है, दैट्स एंजल इन्वेस्टर्स एंड वीसीज. ये वो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं जो मल्टी बैगर रिटर्न्स सीख करते हैं. ओके, तो मल्टी बैगर रिटर्न्स क्या होता है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं. मल्टी बैगर रिटर्न्स वो रिटर्न्स हैं जो आपके पैसे को मल्टीप्लाई करें इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एफडीज वगैरह की बात करें, तो आज अगर हम बात करते हैं कि 5 या 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो शायद आपका पैसा डबल होगा एफडी के थ्रू 8 या 9 साल में. एंजल इन्वेस्टर्स के पास में उतना टाइम नहीं. वो अपने सरप्लस कैपिटल को किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके उस पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इन द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम पॉसिबल. ये रिटर्न्स कितने बड़े हो सकते हैं? These returns can be as high as 100 times, 1000 times. I mean, surreal returns we have seen in the angel investing community. आपको पता है कि Airbnb, Uber और Oyo Rooms के कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने 1000 टाइम्स के रिटर्न्स निकाले स्टार्टअप से. Okay, that's a surreal form of इन्वेस्टिंग. तो अगर इमेजिन करो किसी ने 1 लाख रुपया किसी स्टार्टअप में डाला हो, मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूं, और उसको ओयो रूम जैसी कोई स्टार्टअप मिली हो अपने पोर्टफोलियो में, उसने उसे 10 करोड़ रुपए का रिटर्न दिया हो, कैन देयर बी एनी बेटर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग? यस और नो? क्या इतने सरियल रिटर्न्स? अभी क्रिप्टो को इसमें ऐड मत करना प्लीज. हाँ, अभी हम क्रिप्टो की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. इवन यू नो कि वो कितना डिपेंड करता है हाइप के ऊपर, क्रिप्टो की ग्रोथ जो है. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ हाइप ड्रिवन मार्केट. हम बिजनेस फंडामेंटल से चलने वाली रिटर्न्स की बात करें. डू यू एग्री विद मी? बट एट द सेम टाइम इट इज एक्चुअली वन ऑफ द रिस्किएस्ट forms of investment, or the riskiest asset class, as I say. Why? Because so many startups fail. So many startups fail to run the business. So many people go out of business. So many of the funded companies fail. And so many of them fail to return the investor's principal amount. Forget about returns. तो ये बात तो श्योर है, जहां पे रिस्क है वहां पे इश्क है. स्कैम 92 याद आई किसी को? रिस्क है तो इश्क है. तो
जहां पर रिस्क है वहां पे अच्छे रिटर्न्स होते हैं यूजुअली ओके, आई एम नॉट ट्राइंग टू जर्नलाइज इट, बट स्टार्टअप इन्वेस्टिंग वो रिस्की एसेट क्लास है जिसमें अगर आपका शुड आई से गैम्बल, शुड आई से तुक्का, और शुड आई से आपके फंडामेंटल्स सही लग गए, या आपका ब्रेन आपने सही जगह पे लगा के सही जगह पे आपने पैसे को पार्क कर दिया, अच्छे फाउंडर्स को बैक कर दिया, then there are chances that you make multi-bagger returns. Okay? But angel investors जब आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, because they are taking risk with their capital, they expect multi-bagger returns. At the same time, they control your decisions. तो आपका बिजनेस आपका नहीं है once you raise capital. What I mean by that is they will control your decisions. वो आपके बिजनेस करने में आपकी हेल्प भी करेंगे और आपको stupid decision लेने से रोकेंगे. तो a part of you will say कि यार मैं अगर अपने बिजनेस को ऐसे रन करना चाहूँ कि कोई मुझे इंटरप्ट ना कर पाए, no, that's not possible when you raise money. आपने जब पैसा रेज कर लिया, और इन अ वे कई लोगों के लिए काफी फेवरेबल भी हो. क्यों? क्योंकि आपको वो स्मार्ट लोग मिले जो पैसे के साथ साथ आपको अपने बिजनेस कनेक्ट्स और अपनी एडवाइस, अपने कई सालों का एक्सपीरियंस आपको देते हैं साथ में, नॉट जस्ट मनी. ओके, एम आई क्लियर हियर? एम आई क्लियर सो फार? यस और नो? Perfect. So many people are saying yes. So we'll move on to the next one. तो एक काम करते हैं, let's play a game here. I have some case studies in front of you. Imagine कि आपके पास 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए स्टार्टअप्स में, एंड आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो. ठीक है, आपके पास 50 लाख रुपए का सरप्लस कैपिटल पड़ा है और आपको इन्वेस्ट करना है उस पैसे को. तो मैं उसमें से मैं केस स्टडी आपके सामने आपको बताता हूँ. 3 केस स्टडीज बताऊंगा स्टार्टअप्स की, कि आप मुझे बताना कि क्या आप उनमें इन्वेस्ट करना चाहोगे या नहीं. सो इमेजिन यू आर इन 2016 राइट नाउ. आप 2022 में नहीं हो, आप 2016 में हो, एंड देयर इज अ क्लाउड किचन सेलिंग प्रीमियम बिरयानी. ओके, क्लाउड किचन सबको समझ में आता है. एक क्लाउड किचन है जो क्लाउड किचन चेन बोल लीजिए, जो प्रीमियम बिरयानी सेल करती है, और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है. वो प्रॉब्लम क्या एड्रेस है कि जो अनअवेलेबिलिटी है फ्रेशली कुक्ड बिरयानी की, उन्होंने देखा कि बिरयानी बेचने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी फ्रेशली कुक करके नहीं बेच रहा. मतलब हर ऑर्डर को फ्रेशली कुक करके नहीं बेच रहा है. लोग सुबह सारी की सारी बिरयानी बना के रख लेते हैं, और जैसे जैसे ऑर्डर्स आते हैं उनको हीट कर करके कस्टमर्स को देते रहते हैं. तो इनका मेन मॉडल क्या है? डिलीवरी करना, बिरयानी की डिलीवरी करना. अभी इनके पास 2 किचन हैं और ये मंथली 10 लाख रुपए का रेवेन्यू बना रहे हैं. प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, रेवेन्यू बना रहे हैं. फाउंडर्स एक्सपीरियंस है और कोई 1000 यूजर्स ने इनको 4.5 रेट किया है जोमैटो के ऊपर. और इनका प्लान है कि एक दिन ये अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च करेंगे, मतलब ये स्टॉक मार्केट में पब्लिक होंगे. ये रेज करना चाहते हैं 2 करोड़ रुपए 13 करोड़ की वैल्यूएशन पे. अब आप लोगों को वैल्यूएशन वर्ड समझाने की जरूरत तो है, आप लोगों ने शार्क टैंक देख ही रखा है, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट वैल्यूएशन. आई एज्यूम कि आप लोगों को पता है कि वैल्यूएशन क्या होती है. नेवरदलेस, आप में से कितने लोग इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहोगे, या अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली होती 2016 में इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की, तो आप क्या इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते? यस और नो? करण सेज नो. करण कॉन्ट्रेरियन है, इसका व्यू थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी है बाकियों से. आकाश सेज यस, हेमंत सेज आई विल, स्मृति सेज आई विल, तनुश्री सेज यस, अंशुमन सेज नो, मोहित सेज नो. Okay.
Now let's not go into the rational. Wow, so many people saying no. So let me break it for you guys. जिन लोगों ने no बोला है ना, उन लोगों ने एक मल्टी बैगर स्टार्टअप रिटर्न को मिस किया है. पता है क्यों? क्योंकि 2021 में, हम 2016 में इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 2021 में इस स्टार्टअप ने 550 करोड़ की वैल्यूएशन पे फंडिंग रेज की है और अपने 5 साल पुराने वाले इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न दिया है. मतलब आप ये लगा लो कि जिसने 10 लाख रुपए इस स्टार्टअप में लगाए होंगे वो 1.5 करोड़ रुपए लेके बाहर निकला होगा. This startup is none other than Biryani by Kilo. Did it surprise you? तो जो नो वाले हैं वो अपने डिसीजन को यस करना चाहेंगे. Anshuman says, I was joking, I will invest, I trust you. Anshuman, the only problem is, now that you're saying it, after knowing, it's very hard to go, it's very hard to predict कि क्या ये स्टार्टअप इतना आपको रिटर्न दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, या कोई भी स्टार्टअप फॉर दैट मैटर आपको रिटर्न दे पाएगी या नहीं दे पाएगी. A lot of times it's all about your gut feeling. ठीक है? Now jumping to case study number 2. और आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के रखना इसमें. मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा. ये तीनों केस स्टडीज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 3 केस स्टडीज, इसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ. Now case study number 2. Imagine we are in 2017. 2017 में हम लोग एक B2B एग्रीगेटर है आर्टिसंस का. आर्टिसन सारे समझते हैं. आर्टिसन वो लोग हैं जो अपना आर्ट क्रिएट करते हैं. एक एग्रीगेटर है जिसने आर्टिसंस को इकट्ठा किया और उसके थ्रू एक बिजनेस मॉडल क्रिएट किया कि उनके आर्ट को कलेक्ट करके वो पूरे इंडिया में सेल कर रहा है, विच इज अ परफेक्ट केस फॉर सोशल इम्पैक्ट फंड्स, क्योंकि इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है. दूसरे, वो प्रॉब्लम के एड्रेस कर रहे हैं कि आर्टिसंस जो हैं वो यूजुअली अंडरपेड है. लेट्स एक्सेप्ट इट, वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन जितना वो डिजर्व करते हैं, यूजुअली 9 आउट ऑफ 10 को वो प्लेस, वो इनकम मिलती नहीं है जो वो डिजर्व करते हैं. फाउंडर्स ने 3 साल बहुत सारा हार्डवर्क किया है हंड्रेड्स ऑफ आर्टिसंस के साथ में, एंड नाउ दे आर प्लानिंग टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स. वो सिर्फ इंडिया में नहीं, वो पूरी दुनिया के मार्केट्स में सेल करना चाहते हैं ये आर्टिसंस के प्रोडक्ट्स को. एंड ये ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए पर मंथ का रेवेन्यू कर रहे हैं. अभी हम 2017 में है, बाय द वे. मैं उस टाइम के सारे फिगर्स की बात कर रहा हूं. इनके मार्जिन्स 55% के आसपास है, जो काफी हेल्दी है. और ये 2020 में 15 करोड़ की एनुअल सेल्स करना चाहते हैं. आज वो 1.5 करोड़ रुपया रेस करना चाहते हैं 15 करोड़ की वैल्यूएशन पे. क्या आप इन्वेस्ट करना चाहोगे? अगर आप 2017 में स्टार्टअप की पिच को सुन रहे होते और आपके पास 50 लाख रुपए होते, तो क्या आप इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते? यस और नो? Some people are saying yes, I will invest. Hemant says no sir. हेमंत, आप क्या करने वाले हो? अपने पैसों की एफडी करवाने वाले हो? Fiza says yes, Akash says yes. Sir, I'm unmuting you. He will answer. I'm unmuting myself. Sir, actually मुझे ये डोमेन थोड़ा मतलब मेरे मतलब का नहीं लगा, तो इसलिए मैं नहीं जाना चाहता. इसलिए you're out. क्योंकि आपका एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए you're out, right? हाँ जी सर. ठीक है. So many people are saying yes sir. So let me break it for you. अच्छा, Apurva says, I will invest and target the high income group because lower and middle class generally don't pay for such things. Good thought, Apurva. Brand बना देंगे sir. Agree. So many people are saying no. Vishal says no. She says no. Okay. ठीक है. Let me break it for you. This brand that I was speaking about is called Lal 10. Lal 10. LAL10. Let me write it here for everyone. Lal 10.
मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने इस ब्रांड का नाम नहीं सुना होगा। एंड बाय द वे, इन्होंने बहुत ज्यादा स्केल नहीं किया बिजनेस, बट फिर भी इतना कर लिया कि इन्होंने 3-4 राउंड्स ऑफ फंडिंग के रेज किए और कोई 10 करोड़ की फंडिंग रेज की है। ओके, ये अपने टारगेट्स तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, ऑनेस्टली आई एम नॉट अवेयर, because I'm not an investor in this company. I chose not to invest, and most of my investors chose not to invest. ठीक है, now that brings me to case study number 3. अब केस स्टडी नंबर 3 को देखिए। 4 friends from a small town, 4 दोस्त हैं, बड़ी छोटी सी जगह से हैं, छोटे से टाउन से हैं, जो एक मिशन पे कि स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन को ऑनलाइन लेके जाएंगे। ये हम 2020 में है, बाय द वे, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया बताने में, वी आर इन 2020 राइट नाउ। एंड वो प्रॉब्लम क्या एड्रेस कर रहे हैं कि जो एक्सपेंसिव ऑफलाइन कोर्सेज हैं जिनको लोअर मिडिल क्लास के बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए वो ये प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं और ये सेलिब्रिटी ट्यूटर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। मतलब ऐसे ट्यूटर्स जिनके पास बच्चे लाइन लगा के खड़े होते हैं, और जैसे दिल्ली में आपको ऐसे कई सारे ट्यूटर्स मिलेंगे जिनसे पढ़ने के लिए बच्चे बहुत दूर दूर से ट्रैवल करते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं। स्टेट लेवल पुलिस की भर्ती के एग्जाम्स हो गए, और मतलब बड़े सारे ऐसे एग्जाम्स, हवलदार के एग्जाम्स हो गए, आपके पियोन के एग्जाम्स हो गए, ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी पोस्ट के एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के, जिसके लिए बहुत सारा कंपटीशन होता है। मतलब कि अगर कोई 100 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए कोई 10,000 20,000 लोग अप्लाई करते हैं। तो ये सारे इतने सारे एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के कि इसकी जो मार्केट है, कोचिंग की जो मार्केट है, वो एक बहुत बड़ी मल्टी बिलियन मार्केट है। अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को उठा के देख लो, जो ऑफलाइन क्लासेस की मार्केट है, तो जो बच्चे होते हैं, मान लो कोई बिहार के छोटे से गांव का बच्चा है, उसको अप्लाई करना है और उसको सीखना है एग्जाम में अपीयर होने के लिए, तो वो ऑल द वे दिल्ली के किसी एरिया में आके, जहाँ पे ये ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स होंगे, वहां पे आके 10 लोगों के रूम में ठुस के रहेगा, उसको मंथली रेंटल भी पे करना है, क्लास की फीस भी पे करनी है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं लोअर मिडिल क्लास जो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। और ऐसे ट्यूटर से पढ़ना, जो सेलिब्रिटी ट्यूटर्स हैं, जो मतलब आप लगा लो ऐसे ट्यूटर्स हैं जो साल के 8-8 10-10 करोड़ रुपए पढ़ा के कमाते हैं, ये कोचिंग सेंटर्स खोल के, उन ट्यूटर्स से पढ़ना उनके लिए बहुत बड़ा ड्रीम होता है। तो ये स्टार्टअप का स्टेटस क्या है कि मंथली 20 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है, नेट प्रॉफिटेबल नहीं है ये। इनका एम है कि अगले 3 साल में 30 करोड़ रुपए की सेल करना चाहते हैं। विल यू इन्वेस्ट? यस और नो? अगर आपको समझ में आए ये सब, तो आप बताइए कि आप इन्वेस्ट करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे। सो मेनी पीपल आर सेइंग यस। स्नेहा, अंशुमन, श्वेता, विशाल, मोहित, अमरजीत, हेमंत सेज नो। हेमंत, क्या सोचा है तुमने लाइफ में? विशेष सेज यस। ओके, लेट मी ब्रेक इट फॉर यू। धुरीना, बैंग ऑन। तनुश्री मैम, सही बोल रहे हो आप, धुरीना ही है वो स्टार्टअप। तो गाइस, ये छोटा सा टाउन जो है वो हिसार के पास फतेहाबाद नाम की जगह है, वहां का स्टार्टअप है धुरीना। 2021 में इन्होंने $1.5 मिलियन की फंडिंग रेज की है। मतलब हमने उनमें एक छोटा सीड राउंड किया था और उसके बाद उन्होंने 2021 में $1.5 मिलियन रेज किए एक बड़े पॉपुलर फंड से, और आज ये 130 लोगों की टीम है। एंड ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए कि जो टारगेट इन्होंने 3 साल में अचीव करना था, वो लगभग उस टारगेट में 1.5 साल में पहुंच चुके हैं।
2 साल में, अब हम 2022 में, तो 2 साल में वो ऑलमोस्ट 24 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू पे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये तीनों केस स्टडीज होती हैं खत्म। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इन तीनों स्टार्टअप्स में, इन तीनों केस स्टडीज में कॉमन क्या लगा आपको? क्या ऐसी चीज थी जो आपको कॉमन लगी जिससे इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हुए होंगे इन्वेस्ट करने के लिए? प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स कि ऐसा क्या कॉमन होगा इन तीनों स्टार्टअप्स के बीच में जो आपको लगता है कि इन्वेस्टर्स को जिसने इंप्रेस किया। Apurva says solving problems. Anybody else? Timing, okay. Growing demand. इनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज बहुत बड़ा था। अंशुमन, आई एम सो ग्लैड कि आप इतनी अच्छी बातें करते हो यार, बड़ी डीप बातें करते हो आप। स्नेहा सेज देयर आइडियाज, प्रियंका सेज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स, फिजा सेज पिच, अंशुमन इन कंटिन्यूएशन टू द प्रीवियस कमेंट सेज तो इससे कैश फ्लो बढ़ेगा, बनेगा। विशाल सेज दे वर जनरेटिंग रेवेन्यू, ओके। And Namarji says business model, very good. चलो, मोटा मोटी बहुत सारे आइडियाज हैं आप लोग जो बता रहे हो, जो जो आपके माइंड में आ रहा है। मैं जो चीजों को सम अप करना चाहता हूं यहाँ पे वो है, आपने प्रॉब्लम की बात की, बट उस प्रॉब्लम में एक डाई हार्ड बिलीफ इन फाउंडर्स का था कि जो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स में इनका बहुत डीप बिलीफ था, ओके। एंड दे वर ऑल थिंकिंग बिग। सब लोग बहुत बड़े बड़े गोल्स अचीव करने की बात कर रहे थे। अगर आप इफ यू रिकलेक्ट तो रेवेन्यू के टारगेट्स, आईपीओ करने के टारगेट्स, बहुत बड़ी थिंकिंग की बात हो रही है यहाँ पे। एंड फाउंडर्स वो फुली कमिटेड, मतलब फुल टाइम वो अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। उस टाइम पे भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। सो दे वर फुली कमिटेड कि मतलब यही है एंड देयर इज नो प्लान बी, देयर इज नो प्लान बी। प्लान ए है जो है वही है, उसके अलावा कोई प्लान बी नहीं है, कोई ऑल्टरनेट्स नहीं है, कोई सेकंड थॉट्स नहीं है कि इसको करना ही करना है, बस ये है माइंड में। और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन मतलब जो सबने सबके अंदर कॉमन थी। और इनफैक्ट आज की डेट में हर बिजनेस को टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के बारे में सोचना चाहिए। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन क्या है कि आप अपने बिजनेस को डिजिटाइज कैसे कर सकते हो, आप उसके अंदर टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन के साथ उसको कैसे ग्रो कर सकते हो, ओके। एंड द लास्ट वन इज ग्रिट, नेवर से नो, नेवर क्विट, स्टे कमिटेड। ये ग्रिट है। नो मैटर व्हाट सर्कमस्टांसेस, योर ग्रिट विल नेवर लेट यू एग्जिट, इट विल ऑलवेज कीप यू ऑन योर टोज। अंशुमन, आपको गूज़बम्प्स क्यों आ रहे हैं? साइंस इज प्रॉपर प्लानिंग, राइट गाइस। सो ये था। और इनफैक्ट ये सारी जो क्वालिटीज हैं ये सब फाउंडर्स में होनी चाहिए। आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। इफ यू जस्ट आर थिंकिंग यूजुअल आइडियाज और आप छोटा ही सोच रहे हो कि यार आज मैंने 1 लाख का रेवेन्यू कर लिया 1 महीने में, 4 साल बाद हम 4-5 लाख रुपए के रेवेन्यू पे आ जाएंगे, नो, नो वन गिव्स अ डैम अबाउट दिस, नो वन केयर्स। आपको you'll have to think big enough, especially if you're going to the investors। बड़ा सोचना पड़ेगा। और प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हो उसका आपको डाई हार्ड फैन होना पड़ेगा कि वो आप किस रीजन से सॉल्व कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। एंड यू शुड बी अटैच्ड टू दैट प्रॉब्लम। सॉल्यूशन बहुत सारे तरीकों से निकल के आ जाते हैं, सॉल्यूशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। वन वे और द अदर सम सॉल्यूशन विल वर्क, but the problem should be identified very carefully।
इसीलिए अगर आपको याद होगा जो वो गोल गहरी नाभि करने वाला जो आइडिया आया था शार्क टैंक इंडिया में, या जो एक वो जो थे जो ग्लास को मास्क पहना रहे थे, वो वाले आइडियाज को कितना क्रिटिसिज्म मिला था, क्योंकि दे वर नॉट सॉल्विंग एनी रियल प्रॉब्लम्स, है ना। तो अगर आपने सुना भी हो, दे वर शार्क्स टेलिंग यार दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने वाली, ये क्या बकवास चीजों को आप लेके बैठे हो। सो द प्रॉब्लम शुड बी आइडेंटिफाइड वेरी केयरफुली। आप लोग जो भी बिजनेसेस कर रहे हो, उन बिजनेसेस से रिलेट करो कि आप एक्चुअली किस प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो। व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग फॉर द मैनकाइंड? ओके, व्हेन यू फाइंड दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दैट विल बिकम योर मिशन स्टेटमेंट, और वो मिशन स्टेटमेंट के साथ ही आप सब कुछ आगे करोगे। Rahul says 90% of the investors invest in founders. Absolutely correct, Rahul. तो ये जो फाउंडर्स की हम बात कर रहे हैं, मतलब ये अगर आप 5 चीजें देखोगे तो उनमें से आपको 4 क्वालिटीज फाउंडर्स की ही मिलेंगी। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन तो कंपनीज की है, वैसे वो भी फाउंडर्स का ही डिसीजन है कि आपको टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करनी है या नहीं करनी है तो किस रीजन से करनी है। तो आइड से कि पांचों की पांचों चीजें फाउंडर्स के बारे में ही है। एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इन्वेस्टर्स अच्छे फाउंडर्स में ही पैसा लगाते हैं। तो क्या वो अच्छे फाउंडर हो जिसमें पैसा लगाया जाए? यू आर द बेस्ट जज एंड विल फाइंड आउट। फ्राइडे को विल फाइंड आउट। तो आप अपनी प्रिपरेशन ऑन रखना, जो भी लोग पिच कर रहे हैं फ्राइडे को, आप लोग अपनी प्रिपरेशन ऑन रखना। नाउ डिफिकल्ट क्वेश्चंस दैट इन्वेस्टर्स आस्क, ऐसे कौन से सवाल हैं जो इन्वेस्टर्स पूछते हैं और अक्सर ये क्वेश्चंस पे फाउंडर्स फंबल कर जाते हैं, बिकॉज आइदर दे डोंट नो द आंसर्स और दे डोंट नो मच येट। तो आपको किन चीजों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा? These are some of the questions, जैसे कि what problem you're solving. Okay, this is one of the very basic questions. और हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके बहुत बोलते हैं यार, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो, फाइंड आउट व्हाट योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी। देन हाउ बिग इज द मार्केट फॉर योर सॉल्यूशन? जो भी आपने सॉल्यूशन ढूंढा है उसकी मार्केट कितनी बड़ी है? किसी ने बीच में मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात की, मार्केट साइज की बात की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या वो मार्केट इतनी लार्ज है कि उसमें एक स्केलेबल सॉल्यूशन को बना के सेल किया जाए? वो चीज का आंसर आपके पास होना चाहिए। देन व्हाट इज योर टीम्स एक्सपर्टीज टू डू दिस? जो फाउंडर्स हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है कि जो वो सॉल्यूशन बना के या जो प्रोडक्ट बना के वो चला रहे हैं अपने बिजनेस को, उसको बैक करने वाला एक्सपीरियंस क्या है उनके पास? Then how much of your own money have you invested, which is nothing but skin in the game. आपने कितना पैसा अपने बिजनेस में लगाया? Some of the associated questions can be, are you running your business full time? कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो शायद पार्ट टाइम करने का सोच रहे होंगे, या जिनको लगता होगा कि यार साइड किक की तरह एक बिजनेस को रन कर लेंगे, दूसरे को मेन स्ट्रीम करके रन कर लेंगे। इट डजंट वर्क दैट वेज। या नौकरी कर लेंगे फिर साथ में बिजनेस रन कर लेंगे, इट डजंट वर्क। मतलब साइड गिग की तरह, पैसिव इनकम की तरह तो आप शायद कुछ बना सकते हो थोड़ा बहुत अपने लिए, बट यू कैन नॉट रन अ बिजनेस, यू कैन नॉट बिल्ड अ बिजनेस पार्ट टाइम। लेट्स एक्सेप्ट इट। देन हु आर योर कॉम्पिटिटर्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिर्फ नाम नहीं पता करने, बट एक्चुअली उनके बारे में रिसर्च करनी है। वो कॉम्पिटिटर्स करते क्या है, कितने पुराने ब्रांड्स हैं वो मार्केट में, उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, किन किन जियोग्राफीज में वो प्रेजेंट हैं, वो अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करते हैं, यानी उनकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। एंड देन व्हाट आर योर डिफरेंशिएटर्स? आप उन कॉम्पिटिटर्स से डिफरेंट कैसे हो, आपके यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, यूएसपी जिसको हम कहते हैं। हाउ इज योर प्रोडक्ट डिसरप्टिव? अब डिसरप्टिव क्या होता है? आपने शार्क टैंक में भी सुना होगा, डिसरप्टिव है, मार्केट को डिसरप्ट कर देगा। सो डिसरप्टिव बाय मीनिंग इज समथिंग जो मार्केट में आके तहलका मचा दे। मतलब यूजुअली जैसे काम किया जा रहा है किसी भी इंडस्ट्री में, उस काम को वो बदल दे।
या आपके डेली लाइफ में आप किसी भी चीज को अगर किसी तरीके से कर रहे हो, उसको वो टोटली चेंज कर दे, डिसरप्ट कर दे, दैट्स कॉल्ड बीइंग डिसरप्टिव। तो आपका प्रोडक्ट कैसे डिसरप्टिव है, वो मार्केट में सिग्निफिकेंट चेंज कैसे लेके आएगा, इस क्वेश्चन का आपको आंसर प्रिपेयर करना है। हाउ विल यू मेक मनी, आपका बिजनेस मॉडल क्या होगा। आप में से कुछ लोगों ने बिजनेस मॉडल को कोट किया चैट में, तो वो बिजनेस मॉडल एक्चुअली है क्या? बिजनेस मॉडल इज नथिंग बट अ वे टू टेल हाउ डू यू मेक मनी। मतलब लेट्स नॉट कंफ्यूज इट विद बिजनेस मॉडल कैनवस। बिजनेस मॉडल कैनवस का जो आपने सेशन भी अटेंड किया था, वो बिजनेस मॉडल कैनवस इज मोर लाइक अ टूल, जिसमें आप अपने पूरे बिजनेस को एक, या बिजनेस आइडिया को एक पेज पे डिफाइन कर सकते हो विद सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, कि उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, मतलब कि आप ऑफर क्या करते हो, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किसको ऑफर करते हो। तो वो सारे उस टूल का पार्ट है, राइट। वी आर करंटली स्पीकिंग अबाउट बिजनेस मॉडल, इट सिंपली मीन्स हाउ डू यू मेक मनी। ठीक है, 100 बात की एक बात। एंड देन व्हाई डू यू नीड मनी, आपको पैसे रेज करने की जरूरत क्यों है, वो एक डीप रिसर्च का पॉइंट है। मतलब यू माइट से कि यार एक्सपैंड करने के लिए चाहिए या मार्केटिंग करने के लिए चाहिए, बट फिगर आउट कि कितना चाहिए मार्केटिंग के लिए, कितना चाहिए जियोग्राफिकल एक्सपेंशन के लिए, कितना चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज को हायर करने के लिए, जिसमें आपको थोड़ी बहुत प्रोजेक्शंस भी लेके आनी पड़ेगी कि अगर मैं आज 1 करोड़ की फंडिंग के लिए इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर रहा हूँ, तो वो पैसे की मुझे एक्चुअली जरूरत क्यों है, और वो किन किन एरियाज में मैं पैसे को यूज करने वाला हूँ या वाली। दैट यू नीड टू फाइंड आउट। नाउ इन्वेस्टर्स पैसा कब बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मल्टीपल वेज, बट जनरल वेज, 3 things that I want to speak about is, first of all, जब आपका बिजनेस सेल होता है या एक्वायर होता है, तो जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा बनाते हैं, दे मेक मनी देन। सेकेंडली, when the new investors buy shares at a higher valuation, मतलब कि वैल्यूएशन का पॉइंट हम लेके आते हैं। मान लो आपने अपना फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट रेज किया 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे, आपका नेक्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है 20 करोड़ की वैल्यूएशन पे। तो ऑन पेपर आपके जो फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टर्स थे, ऑन पेपर उनके स्टेक की वैल्यू 4 गुना बढ़ गई। ऑन पेपर, अभी उनको मिला नहीं है एग्जिट, या बैंक में उनके पास पैसे नहीं आए, बट फ्यूचर में डिमांड एंड सप्लाई जो है वो इन्वेस्टमेंट मार्केट में काम करती है, जैसे किसी भी और मार्केट में काम करती है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट मार्केट में। When I say investment, I just do not mean venture capital investment, यानी कि जो हम स्टार्टअप इन्वेस्टिंग की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं इसमें, हम इसमें बात कर रहे हैं ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप रियल एस्टेट को ले लो, जहां पे डिमांड ज्यादा होगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी। तो जब बायर आपकी 50 लाख रुपए की खरीदी हुई प्रॉपर्टी के लिए 1 करोड़ रुपए पे करने के लिए रेडी हो, you know that okay, इस प्रॉपर्टी की डिमांड है। सिमिलर वे में आप स्टार्टअप के भी जो कॉन्सेप्ट है, स्टार्टअप इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी सिमिलर वे में ही काम करता है। जब किसी स्टार्टअप की डिमांड होती है, वो अच्छा काम करती है, उसके फाउंडर्स अच्छे होते हैं, ट्रैक्शन, रेवेन्यू बिल्ड होता है, ग्रोइंग यूजर्स होते हैं, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन होती है, तो उसकी वैल्यूएशन बढ़नी लाजमी है। वैल्यूएशन तो बढ़ेगी बढ़ेगी। That's when the new investors buy the shares of old investors at higher valuation. That's how the investors make money. And third, जो कि ड्रीम होता है हर स्टार्टअप के लिए, that they want to get listed in the stock market. अब अनफॉर्चुनेटली जो इकोसिस्टम में कुछ रीसेंट आईपीओज हुए हैं, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने उन आईपीओज में पैसे लूज ही किए, है ना। आप पेटीएम को उठा लो, आप नायका डे 1 पे अच्छी वो देखे गया, लिस्टिंग देखे गया, बट जिन लोगों ने बाद में उसको खरीदा उन लोगों के पैसे लूज ही हुए। वो लोग 50% लोअर प्राइस पे बैठे हैं आज की डेट में। तो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम
आईपीओ के हिसाब से अभी थोड़ा सा इमेच्योर है, अभी थोड़ा सा नया है. थिंग्स आर गोइंग टू टेक टाइम हियर, राइट? बट द लार्जर पॉइंट दैट आई वांट टू मेक हियर इज कि जब आपकी कंपनी, आपकी स्टार्टअप लिस्ट होगी स्टॉक मार्केट में, आई विश दैट हैपन्स, तब आपके इन्वेस्टर्स की लॉटरी लग जाएगी. एटलीस्ट दोज इन्वेस्टर्स जो प्राइवेटली जिन्होंने स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया हुआ था, जिन्होंने पेटीएम में इन्वेस्ट किया हुआ था, जिन्होंने नायका में इन्वेस्ट किया हुआ था, एंड व्हाटएवर नेम्स यू वांट टू कोट हियर, उन लोगों ने तो भाई बहुत पैसा कूटा है, बहुत पैसा बनाया उन्होंने. आप लोगों के पैसे लूज हुए हो आईपीओज में इन्वेस्ट करके तो अलग बात है, लेकिन प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के पैसे खूब बने. सो वेंचर कैपिटल इज अ 1% बिजनेस. वेंचर कैपिटल क्या है? इट्स नथिंग, मतलब मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट यू कैन think of venture capital as the capital which is invested into ventures. मतलब कि स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं. तो ये जो बिजनेस है वो 1% बिजनेस है. इसके बारे में मैंने पहले भी बात की हुई है, आप कई लोग उससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि लेस देन 1% ऑफ द एप्लीकेंट्स गेट फंडिंग, लेस देन 1% ऑफ द फंडेड स्टार्टअप्स रीच द आईपीओ स्टेज, एंड लेस देन 1% आर एबल टू गिव मेगा एग्जिट्स टू द इन्वेस्टर्स. तो अगर इन्वेस्टर्स का स्टेक किसी स्टार्टअप में है, वो इतना रिस्की है कि शायद 1% ही ऐसे होंगे जो उनको मेगा एग्जिट्स देके जाएंगे 100x टाइप्स. तो इट्स अ रिस्की फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग. बहुत सारी में वो पैसा लूज भी करेंगे. एंड फॉर दैट रीजन यू सॉ शार्क्स ऑन शार्क टैंक इंडिया आस्किंग फॉर सो मच इक्विटी. आपने ये सारे कोट सुने होंगे, क्योंकि मेरे को आपके बिजनेस में काफी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपको इतना सपोर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं 2% नहीं लूंगा, मैं 30% लूंगा. मतलब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि यार लूट लिया, बट लेट्स बी ऑनेस्ट हियर कि स्टार्टअप्स के साथ में बहुत सारा काम करना पड़ता है इन्वेस्टर्स को. मैं यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ किसी को. ऑल आई एम सेइंग इज कि इन्वेस्टर्स का रिस्क बहुत ज्यादा होता है स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए. इसीलिए बहुत सारी चीजें म्यूचुअल नेगोशिएशन पे डिपेंड करती है. आप आज एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी स्टार्टअप की वैल्यूएशन होनी चाहिए 5 करोड़ रुपए. आपने सारे फॉर्मूलाज डालिए, आपने मर्चेंट बैंकर को हायर कर लिया, आपने 10 लोगों से कंसल्ट कर लिया, आप मेरे पास आया कि सर मेरी वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए. मैं बोलूंगा यार करो भाई, 10 करोड़ में फंडिंग रेज करो. बट इट्स ऑल द गेम ऑफ नेगोशिएशन. शार्क टैंक इंडिया में आपको दिखा कि कोई फॉर्मूला या कोई डीसीएफ कैलकुलेटर खोल के बैठा हो कि नहीं जी मेरी 100 करोड़ की वैल्यूएशन इसलिए बनती है क्योंकि मैंने डीसीएफ कैलकुलेशन की है. वहां पे तो सब नेगोशिएशन की गेम थी. एवरीवन वाज नेगोशिएटिंग, राइट? सो दैट्स व्हाट इट इज. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन. आप में से कुछ लोग हैं जो फ्राइडे को पिच करने वाले हैं, कुछ लोग हैं जो फ्राइडे को पिच नहीं करने वाले. तो जस्ट टू गिव यू द बैकग्राउंड, हम लोग एक डेमो पिच सेशन रख रहे हैं फ्राइडे को, जिसमें हर सेंटर के, हर लोकेशन के मैक्सिमम 4 स्टार्टअप्स अलाउड है पिच करने के लिए. और जो उस डेमो सेशन में फीडबैक मिलेगी या जो उस डेमो सेशन में सेलेक्ट होंगे स्टार्टअप्स, वो मंडे को, कमिंग मंडे को पिच करेंगे जूरी पैनल को. ओके, तो ये उसकी प्रिपरेशन के लिए है. इन केस आप फ्राइडे को पिच नहीं भी कर रहे हैं, तब भी ये वाला पार्ट आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा. इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, क्योंकि आपको एनीवे अपने पिच डेक रेडी करने चाहिए. और इन्वेस्टर्स को आप अप्रोच करें ना करें, आपके लिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी इसके थ्रू आएगी. विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. तो मैं थोड़ा सा तेज भागूंगा. स्टॉप मी वेयर यू वांट मी टू स्टॉप. ठीक है? सो पिच डेक बेसिकली एक टूल है, एक प्रेजेंटेशन है जो कि आप प्रिपेयर करते हो यूजुअली फॉर पिचिंग इन फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टर्स, ताकि आपकी स्टार्टअप स्टैंड आउट करे इन्वेस्टर्स को. तो आप उसमें अपना बेस्ट देना चाहते हो. यूजुअली पिच डेक्स का यूज यही होता है कि आप इन्वेस्टर्स के पास लेके जाते हो, बट यू कैन ऑल्सो यूज इट एज अ सेल्स पिच डेक बाय मेकिंग अ फ्यू चेंजेस. मतलब इसी को सेल्स
पिच डेक की तरह भी यूज कर सकते हो, सेल्स पिच के लिए भी यूज कर सकते हो, थोड़े बहुत चेंजेस करके। अब इसके कंपोनेंट्स क्या है, मतलब इसमें कौन कौन सी स्लाइड्स होनी इंपॉर्टेंट है। सो कोई 9 स्लाइड्स इसमें होनी चाहिए, दैट्स द थंब रूल। द फर्स्ट वन दैट वी ऑलवेज क्रिब अबाउट, हम लोग हमेशा रोते रहते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्लाइड नंबर 1 इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, स्लाइड नंबर 2 इज सॉल्यूशन दैट यू प्रपोज, 3 will be market validation. I'll come to this thing कि market validation क्या होती है। 4th is market size, कई लोगों को पता है कि मार्केट साइज क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता उनको आज पता चल जाएगा। 5, slide number 5 is product, about the product, that how it works. Slide number 6 is business model. 7 is competition. 8 is our team, which is about the founders and the core team. And 9 is ask and use of money. Okay, so I'll quickly jump to the next one. तो अभी हम ना एग्जांपल ले रहे हैं एयरबीएनबी का। एयरबीएनबी का ये वो प्रेजेंटेशन डेक है, डेक है जो उन्होंने अपने फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया था, एंड फॉर्चुनेटली दे गॉट मनी, उनको मतलब ठीक ठाक अमाउंट की फंडिंग मिल गई थी। तो कुछ पार्ट एयरबीएनबी का रहेगा इसमें, और शायद 2-3 स्लाइड्स ऐसी हैं जो आपको एयरबीएनबी के पिच डेक में नहीं मिलेंगी, वो मैंने बाहर से अलग से इसमें लगाई है। ओके, सो फर्स्ट इन फर्स्ट, इसको मैं रैदर स्लाइड नंबर 0 बोलूंगा, जिसमें आप अपनी कंपनी का लोगो डालोगे, एंड अगर उसकी कोई टैगलाइन है वो आप डाल दोगे। ओके, सो दिस इज लाइक एन ओपनिंग स्लाइड, वेलकम स्टार्ट। मेन काम शुरू होता है अब, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की आप बात करोगे। तो एयरबीएनबी ने क्या बोला, एयरबीएनबी, अगर आप लोगों ने कईयों ने सुना होगा, एयरबीएनबी क्या है कि आप व्हेन यू ट्रैवल टू अ सिटी, यूजुअली आप लोग होटल्स में रहते हो। एयरबीएनबी ने क्या बोला कि नहीं भाई, तुम होटल्स में मत रहो, तुम जो लोकलाइट्स हैं, जो लोकल लोग हैं, उनके घरों में जाके रहो। थिंक अबाउट इट, क्या आप किसी स्ट्रेंजर के घर में रुकना चाहोगे, या आपने कभी सोचा होगा मैं किसी सिटी में गया तो किसी स्ट्रेंजर के घर में रुकूंगा? एयरबीएनबी से पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो इन्होंने मार्केट को डिसरप्ट किया इस कॉन्सेप्ट को लाके। इन्होंने क्या बोला प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर कस्टमर्स बुकिंग ट्रैवल ऑनलाइन। ये हम बात कर रहे हैं 2009-2010 टाइप की, 2009 या 2010 में इन्होंने अपनी पिच की थी। तो ये वो वाला पिच डेक है। उन्होंने बताया कि जो कस्टमर्स अपनी ट्रैवल को ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, उनके लिए प्राइस एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है, वो एक पेन पॉइंट है कि अगर ज्यादा प्राइस होगा तो उनको कंसर्न करेगी वो चीज। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि होटल्स लीव यू डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सिटी एंड इट्स कल्चर, विच मीन्स कि जब आप किसी होटल में जाकर रुक जाते हो तो आप उसी होटल के अंदर हो, आपको यूजुअली वो सिटी की नॉलेज, उसके फ्लेवर, उसकी पॉपुलर जगह, उसके कल्चर के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तीसरा उन्होंने क्या बोला कि देयर इज नो इजी वे टू बुक अ रूम विद अ लोकल और बिकम अ होस्ट। ये कोई ऐसा तरीका ही नहीं है कि आप किसी लोकलाइट के साथ, उस सिटी के रेजिडेंट के साथ कोई रूम बुक कर पाओ, या आप खुद एक होस्ट बन पाओ किसी सिटी में अगर आप रहते हो, जहां पे आके लोग आपके साथ रह सके। ठीक है, फिर वो आए सॉल्यूशन पे। इन्होंने बताया कि हम एक वेब प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जिसमें यूजर्स कैन रेंट आउट देयर स्पेस टू होस्ट ट्रैवलर्स टू, नंबर 1, सेव मनी। इफ यू रिमेंबर द पेन पॉइंट, तो प्राइस की उन्होंने बात की थी, तो अब इन्होंने फर्स्ट सॉल्यूशन दिया टू सेव मनी व्हेन पीपल आर ट्रैवलिंग। नंबर 2, मेक मनी व्हेन होस्टिंग। जब आप होस्ट करो किसी स्ट्रेंजर को, किसी ट्रैवलर को, then you make money. And number 3, शेयर कल्चर, कि जो आपके सिटी का लोकल कनेक्शन है, लोकल कल्चर है, उसको आप शेयर कर सकते हो किसी भी स्ट्रेंजर के साथ। ये उनका सॉल्यूशन था। सो नेक्स्ट स्लाइड इज मार्केट वैलिडेशन। हमने इसकी बात की थी। तो मार्केट वैलिडेशन के लिए उन्होंने क्या किया, जैसे कि आप में से कुछ लोग रिलेट कर पाओगे जिन्होंने हमारे प्रीवियस
विंटर स्टार्टअप स्कूल, समर स्टार्टअप स्कूल वगैरह कुछ अटेंड किए होंगे, तो हमने मार्केट वैलिडेशन पे काफी एम्फेसिस डाली कि यार तुम्हारे माइंड में कॉन्सेप्ट आया, लेकिन जब तक तुम बाहर जाके लोगों से बात करके उस प्रॉब्लम को वैलिडेट नहीं करोगे, या ये जानोगे ही नहीं कि वो एक्चुअली वो प्रॉब्लम है या नहीं है, मार्केट क्या उस चीज को वैलिडेट करती है? मतलब थिंक अबाउट इट कि आप लोग तो अपने आइडिया को लेके हो बड़े इमोशनल, यार ये तो डिस्रप्टिव आइडिया है, इससे दुनिया बदल जाएगी, बट अनलेस यू गो आउट एंड टॉक आउट इन द मार्केट, या ऑनलाइन बैठे बैठे भी मार्केट वैलिडेशन जब तक आप नहीं करते हो तो आपको चीजों का आइडिया नहीं लगता है। तो एयरबीएनबी ने मार्केट वैलिडेशन कैसे की कि जो उस टाइम पे एक टेम्परेरी हाउसिंग साइट थी couchsurfing.com यूएस में, तो उसके ऊपर उन्होंने बताया कि 6,30,000 लिस्टिंग्स हैं। ये अगेन बात हो रही है 2009-10 की, एंड उन्होंने बताया कि 17,000 टेम्परेरी हाउसिंग लिस्टिंग्स हैं सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क सिटी क्रेगलिस्ट में। आपकी जनरेशन को शायद क्रेगलिस्ट के बारे में आइडिया ना हो ज्यादा, शायद दिस माइट साउंड एलियन टू यू, बट क्रेगलिस्ट में लोग अपनी प्रॉपर्टीज, जैसे आप आज की डेट में इंडिया में देखते हैं OLX है, OLX पे लोग जाके अपनी हाउस की लिस्टिंग डाल देते हैं, है ना, वैसे क्रेगलिस्ट यूएस में काफी पॉपुलर थी। तो इन्होंने उसके थ्रू अपनी मार्केट वैलिडेशन बताई कि अगर इतनी लिस्टिंग्स एग्जिस्ट कर रही हैं, इसका मतलब ये कि बहुत सारे लोग एक्चुअली हमारी टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं अगर हम ऐसा कुछ क्रिएट करें। तो नेक्स्ट इन्होंने बोला कि मार्केट साइज क्या है। अब मार्केट साइज में 3 चीजें होती हैं, 3 सेगमेंटेशंस होती हैं। टोटल अवेलेबल मार्केट, TAM, जिसको हम टैम कहते हैं। दूसरा होता है सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट, यानी कि SAM, और थर्ड होती है सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट या मार्केट शेयर। मतलब मार्केट शेयर वो पार्ट है जिसके ऊपर आप फोकस करोगे। तो उन्होंने कहा जी दुनिया में तकरीबन 2 बिलियन, 1.9 बिलियन उन्होंने बोला ट्रिप्स बुक हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर द वर्ल्ड 2 बिलियन के आसपास ट्रिप्स बुक हो रहे हैं हर साल। उसमें से 1/4, ऑलमोस्ट 1/4 ही, यानी कि 25% उसमें से बजट एंड ऑनलाइन ट्रिप्स है। 2 बिलियन में से 1/4 ट्रिप ऐसे हैं जो ऑनलाइन बुक किए जाते हैं, एंड यूजुअली ऑनलाइन इसलिए बुक किए जाते हैं क्योंकि डील्स मिल जाती हैं, अच्छे बजट में मिल जाते हैं, आप कंपैरिजन कर लेते हो। तो उन्होंने बोला कि ये सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट है, मतलब ऐसी मार्केट है जो हमारे लिए खुली है, लेकिन हम इस पूरी मार्केट को टारगेट नहीं करने वाले। हम इस मार्केट के सिर्फ 2% को फोकस करने वाले, यानी कि बजट एंड ऑनलाइन ट्रिप्स को ही फोकस करना है, लेकिन उसका 2% हम अचीव करेंगे, द ट्रिप्स विच विल बी बुक्ड विद Airbnb। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा मार्केट शेयर हो 10.6 मिलियन ट्रिप्स वर्ल्ड वाइड। एज सिंपल एज दैट। 2 बिलियन जो है उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का शेयर है, और ऑनलाइन का शेयर सिर्फ 25% है, बाकी 75% जो है वो ऑफलाइन है, जिसपे हमें फोकस ही नहीं करना। ये Airbnb की सोच थी, हमें फोकस करना है सिर्फ 25% पे, और उसके 2% को हमें अचीव करना। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अभी इन्होंने रेवेन्यू मेकिंग पोटेंशियल की बात ही नहीं की, अभी तक इन्होंने सिर्फ नंबर ऑफ ट्रिप्स की बात की। फिर उन्होंने बात की प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट कुछ ऐसी वेबसाइट होगी जिसमें लोग सर्च करेंगे बाय सिटी, रिव्यू करेंगे लिस्टिंग्स को कि उसमें क्या क्या लिस्टिंग्स है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है जिनको बुक किया जा सकता है, और उनको बुक कर देंगे। ठीक है, आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट के लिए ये वाली स्लाइड कैसी लगेगी। यू कैन थिंक ऑफ इट। Then they talked about business model. How do we make money? They said we take a 10% commission on each transaction. मतलब कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, किसी ने भी रूम बुक किया Airbnb का, तो उसके ऊपर हम 10% कमीशन लेंगे। अब अगर आपको याद हो, शेयर ऑफ द मार्केट उन्होंने 2% लिया था, जो था 10.6 मिलियन ट्रिप्स विद Airbnb। उसमें वो कहते हैं कि हमारा एवरेज
जो हम बनाएंगे हर ट्रिप से वो होगा $20। ओके, क्योंकि उन्होंने बोला कि $70 की एवरेज फी है पर नाइट, और एवरेज 3 नाइट्स के लिए अगर ट्रिप बुक होता है तो $210 के आसपास बनते हैं। $210 की ट्रांजैक्शन हुई तो उसमें से 10% हम लेंगे, यानी कि $20 हमारा कमीशन हो। एंड 10 मिलियन ट्रिप्स के साथ वो ट्रांसलेट होगा $200 मिलियन के रेवेन्यू में 3 साल में, 2008 से 2011 के बीच में। ये इनकी प्रोजेक्शंस थी अलोंग विद द बिजनेस मॉडल। सो इंटरेस्टिंगली जब आप प्रोजेक्शंस की बात करते हो ना, यू कैन शूट फॉर एनी नंबर्स। मतलब अगर आप अपने रेवेन्यू को बताओ कि मैं अगले 5 से 10 सालों में 100 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच जाऊंगा या 1000 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच जाऊंगा, नोबडी इज गोइंग टू डाइव इनटू इट एंड से कि नहीं नहीं भाई क्या हवा में बातें कर रहे हो एंड ऑल। बट हाँ, आपको भी थोड़ा रीजनेबली सोचना पड़े। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी बोल दिया। थोड़ी सी जब आप कैलकुलेशन करने पे आओगे और जब आप सही डायरेक्शन में मूव करोगे ना, तो कोई ना कोई नंबर्स वो निकल के आएंगे विच शुड बी गुड एनफ, विच शुड बी लार्ज एनफ। मतलब अच्छे लगने चाहिए यार, दे शुड लुक बिग एनफ कि हाँ इस आइडिया में, इस बिजनेस में पोटेंशियल है, तभी किसी इन्वेस्टर को उसको बैक करना चाहिए। ठीक है, सो ऑन पेपर दिस मेड अ लॉट ऑफ सेंस कि $200 मिलियन का रेवेन्यू एयरबीएनबी जनरेट कर लेगा 2008 से 2011 के बीच में। नेक्स्ट इज कंपटीशन। अब कंपटीशन में उन्होंने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बना। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में उन्होंने टॉप पे डाला अफोर्डेबल, नीचे डाला एक्सपेंसिव, यानी कि उसका उल्टा, अफोर्डेबल का उल्टा नीचे आ गया एक्सपेंसिव। ऑफलाइन ट्रांजैक्शन जो आप लेफ्ट में देख रहे हो उसका ऑपोजिट आ गया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ऐसे कौन से प्लेयर्स थे, ऐसे कौन से कॉम्पिटिटर्स थे जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और अफोर्डेबल वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे थे? उसमें उन्होंने डाला खुद को, यानी कि अफोर्डेबल भी हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी। और दूसरे उन्होंने डाला hostels.com को। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड एक्सपेंसिव में उन्होंने डाला hotels.com। ऑफलाइन ट्रांजैक्शन एंड एक्सपेंसिव में उन्होंने 2 प्लेयर्स को डाला, और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन एंड अफोर्डेबल में उन्होंने 3 प्लेयर्स को डाला। ठीक है, जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बनाओ, यू हैव टू मेक श्योर कि आप पैरामीटर्स को ऐसे, मतलब कॉम्पिटिटिव या डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर्स को आप ऐसे प्लेस करो कि आप हमेशा टॉप राइट हैंड साइड पे ही नजर आओ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक, मतलब मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट आई एम गिविंग यू अ रूल ऑफ थंब राइट, like a very important point from the investor discussions I'm disclosing to you कि आपको टॉप राइट हैंड साइड में फॉल करना है। ठीक है, आपके केस में ये पैरामीटर्स बिल्कुल अलग हो सकते हैं। ठीक है, यू कैन थिंक ऑफ इट। आप अगर कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो तो आपके केस में ये पैरामीटर्स, कंपैरिजन पैरामीटर्स कुछ भी हो सकते हैं। सेम नहीं होंगे, ऑफ कोर्स सेम नहीं होंगे, क्योंकि आप एयरबीएनबी वाले बिजनेस में तो हो नहीं। मुझे लगता है आप में से कोई भी ट्रैवल बिजनेस में नहीं है। Then you talk about your team, our team करके आप बताओगे, जिसमें आप सारे फाउंडर्स जो हैं उनकी पिक्चर्स डालोगे, उनके नेम डालोगे और उनकी डेजिग्नेशन डालोगे कि आपकी स्टार्टअप में सीईओ कौन है, सीओओ कौन है, मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन है, ऑपरेशंस ऑफिसर कौन है, टेक्नोलॉजी ऑफिसर, या जो भी आपने टाइटल्स डिफाइन किए हैं, मार्केटिंग ऑफिसर है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, इट कैन बी एनीबॉडी। जो भी आपने रोल्स डिफाइन किए अपनी स्टार्टअप में, वो सारे आप यहाँ पे बताओगे कि कौन वो की लोग हैं जो बिजनेस को रन कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, और उनकी शॉर्ट प्रोफाइल आप डालोगे। ठीक है, दिस इज टू शोकेस कि टीम की स्ट्रेंथ क्या है। एंड देन यू कम टू दिस पार्ट जिसमें आप आस्क एंड यूज की बात कर रहे हो कि कितनी आस्क है आपकी, कि आप आस्क यहाँ पे लिखी है रेजिंग 1 करोड़ रुपीस, एंड यूज क्या है, 30% विल गो टू ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि HR हायरिंग के लिए यूज होगा। आप नए टैलेंट को हायर करोगे 30% के साथ। 20% विल गो टू इन्वेंट्री, व्हाटएवर आपके केस में जो भी एप्लीकेबल हो। 30% विल गो टू जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, 20% विल गो टू मार्केटिंग, व्हाटएवर बी योर रिक्वायरमेंट्स, आप उनको यहाँ पे लिस्ट आउट करो।
ठीक है, एंड विद दैट यू विल कंक्लूड। लास्ट स्लाइड है जिसे आप कंपनी का लोगो डालोगे, प्रेजेंटर का नेम डालोगे, अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो बीइंग द फाउंडर आप अपना नाम डाल दोगे, डेजिग्नेशन डाल दोगे, ईमेल आईडी डाल दोगे, फोन नंबर डाल दोगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये है एक सिंपल सा पिच डेक फॉर्मेट जिसको हम अवेलेबल करा देंगे थ्रू ऑल आवर टीम्स। आपके इंक्यूबेशन सेंटर की जो टीम्स है उनके थ्रू आपको ये पिच डेक की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, सैंपल पिच डेक की, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है जी, सो दैट वाज इट फॉर द प्रेजेंटेशन। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हो एंड आई एम हैप्पी टू आंसर देम वन बाय वन। एनी क्वेश्चंस? स्टूडेंट्स आप लोग अपने क्वेश्चंस या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपना हैंड रेज कर सकते हैं, either ways. Couple of students over here, sir, they are typing their questions. So sure. So sir, Mohit says, suppose you're pitching this and the question is why 10%? 10% क्या मोहित? इक्विटी? क्या मोहित? हाँ जी, आप इधर और सर को अच्छे से आप समझा सकते हो। So the commission 10%. 10% कमीशन। अच्छा, आपके बिजनेस मॉडल में 10% कमीशन क्यों है? हाँ जी, why is it 10%? तो यार वो तो आपको माइंडफुली डिसाइड करना है एंड ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन में अराइज कि आप 10% क्यों लेके चलते, ये 20% क्यों नहीं है, 30% क्यों नहीं है। यू हैव टू फाइंड योर रैशनल, मतलब आई कैन नॉट जस्टिफाई दैट परसेंटेज फॉर यू। वो आपको खुद ही उसका आंसर ढूंढना है। आपका जो बिजनेस है उसके बेसिस पे यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि अगर 10% है तो वो क्यों है और उससे एसोसिएटेड आपकी प्रोजेक्शंस क्या है, राइट? तो अगर आपको ये देखना है कि अगर आप 20% चार्ज कर सकते हो तो आप 10% क्यों करो। अगर आपको पोटेंशियल है 20% चार्ज करने का या 15% चार्ज करने का, देन व्हाई 10%? उसका रैशनल आपको ढूंढना है। that either you want to bring a feel good factor to your customers, आप उनके लिए अफोर्डेबल बनाना चाहते हो, क्या ये आपका रीजन है? या आपका रीजन है मास मार्केट की आप वॉल्यूम पे टारगेट करना चाहते हो, तो 10% इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ बिग नंबर फॉर यू। कि मान लो आप 100 करोड़ की ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, 100 करोड़ की ट्रांजैक्शन में 10% इज ऑल्सो अ वेरी लार्ज नंबर। 10 करोड़ का जो रेवेन्यू है दैट्स अ वेरी लार्ज नंबर, राइट? तो अगर आप 10 की जगह 20% करते हो तो क्या वो 100 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? और पीपल विल बी डिस्करेज्ड टू बुक इट थ्रू योर प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो वो रैशनल आपको ढूंढना है, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड एंड आंसर विद, एंड इट विल बी वेरी सब्जेक्टिव फॉर एवरीबॉडी। हर एक के केस में अलग अलग होगा इसका आंसर, ऑफ कोर्स। Thank you, sir. He's saying. And next we have Anshuman's question. Sir, how can I decide the valuation if I'm on pre-revenue or little revenue? Anshuman, that's a great question. यार वैल्यूएशन इज, देखो वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के ना कई सारे तरीके। जब आप एक रेवेन्यू जनरेटिंग स्टार्टअप होते हो तब आप अपने रेवेन्यू मल्टीपल पे वैल्यूएशन को ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ऐसी स्टार्टअप हो जो टेक्नोलॉजी डोमेन में काम कर रही है, ई लर्निंग डोमेन में काम कर रही है और उसका 1 करोड़ का रेवेन्यू है, देन यू कैन इजीली डू अ मल्टीपल। यू कैन आस्क फॉर अ 10 CR और अ 20 CR बेस्ड ऑन कि आप कितने डिफरेंशिएटेड हो, आपका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। लेकिन जो प्री रेवेन्यू स्टेज है उस केस में ना बड़ी ट्रिकी सी चीज हो जाती है, क्योंकि उसमें आप रेवेन्यू मल्टीपल ले नहीं सकते। उस सिनेरियो में ना यूजुअली आप एक थंब रूल लेके चलो मैं आज आपको ना वैल्यूएशन और डाइल्यूशन की गेम समझाता हूँ क्या होती है।
थोड़ा सा मैथमेटिकल होगा बट बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी के साथ समझाऊंगा कि मान लो आप 1 करोड़ रुपया रेज कर रहे हो 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे, ठीक है। सो इसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है प्री मनी वैल्यूएशन, एक होती है पोस्ट मनी वैल्यूएशन। प्री मनी वैल्यूएशन इज 9 करोड़ रुपए। जब आप 10 करोड़ की वैल्यूएशन की बात कर रहे हो तो 9 CR इज योर प्री मनी वैल्यूएशन, 10 CR इज योर पोस्ट मनी वैल्यूएशन। ओके, अब वो 9 करोड़ के नंबर पे आप कैसे आए वो अलग टॉपिक है, बट मान लो कि आपकी 9 CR की प्री मनी है, 10 CR की पोस्ट मनी है, तो जो आप 1 करोड़ रुपए रेज कर रहे हो 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे, उस 1 करोड़ के लिए आप 10% इक्विटी को डाइल्यूट कर रहे हो। इट्स एज सिंपल एज दैट, क्योंकि आप 10 करोड़ का 10वां हिस्सा रेज कर रहे हो। Am I clear to you? तो मतलब मैथमेटिकल है, तो आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये समझ आया होगा या कितनों को नहीं आया होगा। और वैल्यूएशन और डाइल्यूशन जो, मतलब डाइल्यूशन जो होती है वो हमेशा पोस्ट मनी वैल्यूएशन पे कैलकुलेट होती है कि कितने % इक्विटी डाइल्यूट होगी, वो हमेशा पोस्ट मनी वैल्यूएशन पे कैलकुलेट होती है। अब ये 1 करोड़ कैन बी 10 करोड़, और वो 10 करोड़ की जो वैल्यूएशन है दैट कैन बी 100 करोड़ और व्हाटएवर नंबर, तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। अंशुमन, द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक हियर इज कि द रूल ऑफ थंब सेज कि हर राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, बेशक आप सीड की बात करो, प्री सीड की बात करो, सीड की बात करो, सीरीज ए की बात करो, सीरीज बी की बात करो, एंड सो ऑन की बात करो, द थंब रूल सेज कि आपको अपनी डाइल्यूशन को लेस देन 20% रखना है। हर राउंड में आपको आइडियली 20% से कम डाइल्यूट करना है, मतलब जो भी आप पैसा रेज कर रहे हो आपको 20% से कम इक्विटी देनी है। मैं एक्चुअली आई लव टू टेक अ सेपरेट सेशन ऑन दिस, जिसमें मैं आपको एक्चुअली दिखाऊं कि हर राउंड रेज करने के साथ साथ हर एक की कितनी इक्विटी डाइल्यूट होती है। मतलब यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अगर आप फाउंडर्स हो आज की डेट में, आप और आपके को फाउंडर्स हैं, उनकी 100% इक्विटी है, कल जब आप एक 20% डाइल्यूशन का राउंड करते हो तो आप लोगों के पास, फाउंडर्स के पास कलेक्टिवली 80% रह जाता है, इन्वेस्टर्स के पास 20% चला जाता है। फिर जब उसके बाद एक 20% की डाइल्यूशन वाला राउंड होता है तो आप भी डाइल्यूट होते हो, आपके इन्वेस्टर्स, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी डाइल्यूट होते हैं। सो आई कैन प्रोबेबली डू एन एक्सेल शीट एंड शो इट टू यू गाइस कि जब आप सीरीज ए, बी या सी स्टेज तक पहुंचते हो तब आपके पास यूजुअली विद सम एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल आई कैन शो कि आप लोगों के पास एज फाउंडर्स कितनी इक्विटी बचेगी या बचती है यूजुअली। तो पीयूष बंसल का आपको पता ही होगा, लेंसकार्ट वाले जो हैं, उनकी अपनी कंपनी में कोई 4 या 5% इक्विटी है आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने फंडिंग के कई सारे राउंड्स रेज किए हैं। बट वो 4 या 5% की भी जो वैल्यू है वो कोई आई थिंक $100-200 मिलियन है, मतलब कि 700-800 करोड़ रुपए की वैल्यू है उनकी इक्विटी की उस कंपनी में, लेंसकार्ट में। ठीक है। सो अंशुमन, इट्स वेरी सब्जेक्टिव कि आप कितना वैल्यूएशन पिच करोगे, बट इट्स मोस्टली द गेम ऑफ नेगोशिएशन। और मान लो कि आपको 50 लाख रेज करना है तो 50 लाख या 1 करोड़ रेज करना है, जो भी अमाउंट आप रेज कर रहे हो आपको अपनी डाइल्यूशन को 20% से कम रखना है। तो आपको 10% पिच करना है, 15% पिच करना है या 20% पिच करना है, दैट्स टोटली सब्जेक्टिव, क्योंकि नेगोशिएशन तो होनी है, नेगोशिएशन तो इन्वेस्टर और आपकी होके रहेगी। कपिल सेज हाउ टू कैलकुलेट मार्केट साइज। कपिल, सिंपली आप गूगल पे जाओ, थोड़ा रिसर्च करो, उसमें व्हाटएवर योर बिजनेस इज उसके अराउंड आप फाइंड आउट करो उसके माइक्रो एंड मैक्रोज को। माइक्रो एंड मैक्रोज क्या है कि जो कितनी बड़ी वो मार्केट है पहले उसको फाइंड आउट करो। जैसे एयरबीएनबी के केस में उन्होंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने बुक होते हैं, वो आपका बिजनेस मॉडल नहीं है, आप सब सारे 100% ट्रिप्स पे आप फोकस नहीं कर रहे। फिर उस 100% में से उन्होंने 25% को निकाला जो ऑनलाइन बुक होते हैं और अफोर्डेबल रेंज में होते हैं। उस 25% पे उन्होंने फोकस किया और उन्होंने अपना शेयर बताया कि हमारा शेयर होगा इसका 2%। ठीक है। सो मार्केट साइज कैलकुलेट करने के लिए विल हैव टू डू सम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिसर्च एज वेल। ठीक है। इसके अराउंड कुछ टूल्स भी आपको गूगल पे मिलेंगे, वो भी आप सर्च कर लेना। in case you want me to sell you some, I can do that.
विशाल, आपका क्वेश्चन भी समवट रिलेटेड है, हाउ कैन वी नो द एग्जैक्ट मार्केट। यार चलो मैं आपको एक टूल बताता हूँ, एक ट्रैक्शन करके साइट है जिसका आप जल्दी सुनोगे, आईपीओ भी आने वाला है, इंडिया में इसका आईपीओ आने वाला है, तो इस पे आपको थोड़े बहुत मार्केट इंसाइट्स मिलेंगे। इसी टाइप के और भी टूल्स हैं जिनको आप देख सकते हो, बट नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स। किसी भी एक सोर्स पे डिपेंड मत करना, ऑलवेज ट्राई टू गेट योर नंबर्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। इंडस्ट्रीज की बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं हर साल। EY का आपने नाम सुना होगा, रिसर्च एजेंसी EY, they also do their reports publishing around it. ऐसे बहुत सारी और एजेंसीज हैं इंडिया में, NASSCOM IT इंडस्ट्री के ऊपर पब्लिश करता है। बहुत सारे आपको रिसर्च एजेंसीज मिलेंगे जो अपनी अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश कर रही हैं, तो आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी और एग्जैक्ट मार्केट साइज, तो खैर एग्जैक्ट मार्केट साइज कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इंडिकेटिव नंबर्स आपको जरूर मिल जाए। ऋतिक का भी सिमिलर क्वेश्चन है, हाउ टू नो द मार्केट साइज ऑफ माय इंडस्ट्री एंड हाउ टू सेट माय टारगेट ऑडियंस proportion, sorry. So Ritik, same answer to you. Just do your research online through all these multiple sources that I'm speaking about. KPMG की reports बहुत elaborate होती हैं, तो आप KPMG की reports को refer कर सकते हो, EY की reports को refer कर सकते हो, and Traction जो tool है आप उसको भी refer कर सकते हो। Target audience proportion, again यार, just take a sane number, मतलब insane number को target मत करो। नेवर से कि अगर एक मार्केट आपको एक बहुत बड़ी मार्केट दिखती है तो मैं जी उसका 100% ले लूंगा, नो, दैट्स नॉट पॉसिबल यार। कंपटीशन आएगा, क्या पता ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव मार्केट हो, तो आप उसका 100% तो कभी ले ही नहीं पाओगे। एंड इफ एट ऑल यू गेट सक्सेसफुल, तो आपको कॉपी करने वाले बहुत सारे प्लेयर आ जाएंगे जो अपने अपने डिफरेंशिएटर्स लेके इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करेंगे, एंड दिल बी they might get lucky to raise even more money than you. तो आप एक मतलब ऐसा नंबर लो, जो ऐसी परसेंटेज लो जो आप जस्टिफाई कर पाओ। अगेन अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सो इसका बड़ा सब्जेक्टिव ही आंसर मिलेगा। If I have a unique disruptive startup idea and want to start, then how should I start and market? यार स्टार्ट करने का तो वही तरीका है कि आपको you need to validate, आप मार्केट वैलिडेशन करनी पड़ेगी। मोर देन एनीथिंग, मोर देन एनी ऑफ योर assumptions, आपको मार्केट में जाके लोगों को क्वेश्चन करना पड़ेगा, अपने टारगेट कस्टमर्स से जाके बात करनी पड़ेगी। यू विल नीड टू कलेक्ट देयर फीडबैक टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो वेदर व्हाट यू आर थिंकिंग इज इवन नीडेड इन द मार्केट और नॉट, राइट? सो ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाटएवर सर्वेज यू वांट टू डू, उसके थ्रू ये जानो कि एक्चुअली इस प्रोडक्ट की डिमांड होगी मार्केट में या नहीं होगी। एंड एक्चुअली नॉट प्रोडक्ट, आई शुड रादर से कि क्या ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट टू नो, ठीक है? और मार्केटिंग तो बात की बात है यार, मार्केटिंग तो बाद में आएगी, पहले एक बार स्टार्ट करो तो मार्केटिंग के तो कई सारे तरीके निकल के आ जाएंगे। फिजा से सर, अगर किसी का रेवेन्यू नहीं है तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट के लिए ट्राई करेगा? फिजा, अगर आपका आइडिया इतना डिसरप्टिव है या आप जो बना रहे हो वो एक्चुअली नीडेड है मार्केट में, वो ग्रोइंग मार्केट को टारगेट कर रहा है, मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स आपको जज करते हैं मार्केट रेगुलेशंस के हिसाब से। अब जैसे आज की डेट में अगर क्रिप्टो का एक बिल पास हो जाए, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोल दे कि चलो आज से क्रिप्टो लीगल है, तो आप ये देखोगे कि रेगुलेशन क्लियर होने की वजह से कितनी सारी इन्वेस्टमेंट सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को और जितने भी डिसरप्टिव क्रिप्टो आइडियाज हैं उनमें कितनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्राइव होगी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। बट क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्वॉर्ड हैंगिंग है, कहीं ना कहीं एक तलवार लटकी हुई है रेगुलेशन की, और अभी भी गवर्नमेंट ने उसको लीगल टेंडर नहीं बोला है, तो उसकी वजह से that confident right now, ठीक है? So the point that I want to make here is कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपकी टाइमिंग पे, मार्केट की कंडीशंस पे, रेगुलेशंस उसकी कितनी फेवर में है, क्या वो एक ग्रोइंग मार्केट को टारगेट कर रहा है या वो एक श्रिंकिंग मार्केट को टारगेट कर रहा है ना?
श्रिंकिंग मार्केट के बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जैसे टेलकोज की जो मार्केट है वो बहुत अनस्टेबल होती है। आप अगर जियो, एयरटेल और इन सब की बैटल को लो, ठीक है, तो आपको बहुत सारे श्रिंकिंग एग्जांपल्स मिलेंगे कि यूजर बेस यहाँ से वहाँ शिफ्ट होता रहता है। ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स होंगे। आई एम श्योर देयर आर मेनी बेटर एग्जांपल्स दैट आई कैन कोट राइट नाउ देन आई कैन कोट राइट नाउ, और द वंस दैट आई कैन थिंक राइट नाउ। तो ऐसे श्रिंकिंग मार्केट अगर आप फोकस कर रहे हो, देन ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स विल नॉट बी इंटरेस्टेड। अगर आप ग्रोइंग मार्केट पे टारगेट कर रहे हो, अगर आपकी टाइमिंग अच्छी है, आप अच्छे को फाउंडर्स हैं आपके पास, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, वो एक्चुअली काम करता है, वो प्रॉब्लम को सच में सॉल्व करता है, तो कोई ना कोई इन्वेस्टर आपको जरूर मिल जाएगा। आई थिंक दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। Yes, sir. Sir, thank you very much. And I would like to thank the audience. They've made it very interactive. सबने बहुत enjoy करा. I think we can just clap for sir once. You know, there's an icon over there. You use that icon for reactions. If you've really enjoyed the session, everyone. Thank you very much, sir. It's been a very, very interactive session. यहाँ मेरे साथ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं. They've learned a lot from you, sir. So thank you very much. And we can see the amazing reactions coming in. Thank you so very much. I'm really grateful indeed कि इतनी interactive audience थी और बच्चों ने इतने सारे questions पूछे. In case अगर कुछ और questions भी हैं बच्चों के, I'll be happy to take a follow-up session whenever, maybe next week or so, or they can compile all those questions and send it to me by themselves or through all our center teams. Yes. जैसे भी उनको suitable लगे, they can do that. We can definitely work that out, sir. And I wish the startups participating for the pitching competition on Friday all the best. I hope आपने learn करा हो इसमें से. The format will be given to your center heads. Please stick to the time limit. This time there'll be no lenience allowed. So please startups stick to the time limit. Thank you very much, sir. On this note, I'll be ending the session. Thank you so much. Thank you very much. Bye. Bye.